اور عوامی جماعت ہے؟ فیصل آپ اس میں بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا 56واں یوم تاسیس بلوچستان کے ہیڈ کوارٹر کوئٹہ میں منانے جا رہی ہے۔ میں یہاں پر ہمارے انفارمیشن سیکرٹری بلوچستان کے بیٹھے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر موجود ہیں۔ ساتھ میں ہمارے جو ہے سندھ سے بھی ہمارے انفارمیشن سیکرٹری دامرا صاحب آئے ہوئے ہیں۔ ساتھ امجد افریدی صاحب ہمارے خیبر پختونخوا کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری صاحب بھی یہاں پر، شازی خان صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ بلوچستان کے ہمارے عہدیدار پارٹی کے اور دوست ہیں۔ لہٰذا ہم سب کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف علی زرداری صاحب کل پاکستان کے عوام، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کو ایک اہم پیغام بلوچستان سے دینے جا رہے ہیں۔ یہ وہ صوبہ ہے جس نے ماضی میں بہت سی چیزیں، مشکلات برداشت کی ہیں۔ اگر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کی جائے، ظلم کے حوالے سے بات کی جائے، سب کے سامنے جیسے بھی کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو سب سے پہلے انہوں نے فیڈریشن کے بیہاف پہ بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی، آغاز حقوق بلوچستان کی بات کی، یہاں پر سی پیک کی جو بنیاد رکھی گئی۔ کلیم تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ سی پیک ہم نے شروع کیا۔ گوادر پورٹ جس وقت حوالے ہوا اور یہاں پر کیبنٹ کی میٹنگ ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کی سربراہی میں ہوئی، گوادر میں ایک تاریخی کابینہ کی میٹنگ تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان کے لیے اس وقت کے جو پارلیمنٹیرینز کو جو فنڈز دیے، میں سمجھتا ہوں تاریخ میں اتنے فنڈز ہمارے بلوچستان کے پارلیمنٹیرینز کو نہیں ملے ہوں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملے۔ یہاں پر اس وقت حالات بھی خراب تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کی عوام کے مطالبے پر اس وقت کی ہم نے اپنی صوبائی حکومت کو بھی ختم کیا تھا۔ اور یہاں پر ایک اور حکومت بھی تھی، ایک لاڈلے کی حکومت تھی، جو اپنے ہی مطالبات پر جو ہے یہاں پر جب یہاں پر ہمارے دوست شہید ہوئے اور جنازے نہیں پڑھے جا رہے تھے تو اس وقت ہزارہ کمیونٹی کے ہمارے جو دوست تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ جنازہ پڑھیں گے شرائط پہ، وہ ان کے لاڈلے پن کی ہو، دیکھیں کہیں پہ انسانیت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ بلوچستان کے ساتھ جو ظلم وہ سب کے سامنے ہے۔ میں اس شہر کی بات کروں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر آج ڈیمانڈ کرتی ہے اور کل ڈیمانڈ دوبارہ کرے گی کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے۔ اگر پاکستان کی عوام ووٹ کرتی ہے پی ایم ایل این کو، پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو، تو حق بنتے ان جماعتوں کو حکومت کرنے کا۔ لیکن ایسی تاریخ نہ ہو کہ کوئٹہ کے جیسے نمائندے یہاں پر تھے جن کو میرے خیال میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ 55,000 انسانی غلطی سے ووٹ ڈالے گئے تھے کوئٹہ میں، اور وہ آج تک سپریم کورٹ میں فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ جب آرڈر آ گیا تھا یہاں کے ٹریبیونل سے کہ یہ انسانی غلطی ہوئی ہے، 55,000 کوئٹہ کی لوگوں نے انسانی غلطی کی تھی۔ 1 کہیں، 5 کہیں، 10 کہیں، 50 کہیں، 55,000۔ اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو آج تک سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ تو لوگ کہتے ہیں لاڈلے کون تھے، سلیکشن کیا تھی؟ اس قسم کی سلیکشن ہوئی، بلوچستان سے بھی ہوئی، باقی صوبوں سے بھی ہوئی، اور جب سلیکشن اور لاڈلے ہے تو انہوں نے اس ملک کا جو انجام کیا وہ آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کی تباہی کی۔ لہٰذا بلوچستان کی عوام، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک خوش قسمت ہے کیونکہ آپ کے پاس نگراں وزیر اعظم بھی ہے، وزیر داخلہ بھی ہے، اور عدل اور انصاف کا بھی ترازو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چیف جسٹس صاحب بھی ہمارے بلوچستان سے، اور ہمیں یقین ہے کیونکہ آج کل جو افواہیں چل رہی ہیں اور جو ٹی وی میں کل سے میں ڈیبیٹ دیکھ رہا ہوں، میں نے فائز عیسیٰ صاحب سے ایک دفعہ ان کو میں دیکھا جب وہ آئے تھے پارلیمنٹ میں، ہماری گولڈن جوبلی ہو رہی تھی آئین کی، اور انہوں نے آئین کی کتاب کو ایسے لہرایا تھا کہ پاکستان کو اس آئین کے مطابق اگر چلے گا تو سب ٹھیک ہوگا۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے کوئی الیکشن ملتوی کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، اس ملک میں الیکشن میں دھاندلی کا نہیں سوچ سکتا۔ ہمیں امید ہے اور ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، کوئی آر ٹی آئی سسٹم نہیں بیٹھے گا، کوئی دھن نہیں آئے گی، کوئی آر او الیکشن نہیں ہوگا، کوئی انسانی غلطی کے 55,000 ووٹ نہیں ڈالے جائیں گے، اور جس کو بھی پاکستان کی عوام الیکٹ کرے گی اسی کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے یہاں پر جو ہے ان کو
हुकूमत मिलनी चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ा एक इशू बलूचिस्तान में चमन बॉर्डर पे इस वक्त जो धरना शुरू है, वो भी कई दिनों से एक धरना शुरू है जिस पे हुकूमत की खामोशी भी सवाल निशान है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर दाखिला साहब को, यहाँ की सूबाई हुकूमत को उनके साथ बैठ कर एक डायलॉग्स करने चाहिए। देखें, डिमांडें होती हैं, सही भी होती हैं और गलत भी होती हैं, लेकिन आप मसाइल का हल डायलॉग से निकालते हैं। आप ब्लैक आउट से नहीं कर सकते कि आप मीडिया पे ब्लैक आउट कर दें और चीज़ें छुप जाएंगी। सोशल मीडिया मौजूद है, लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि उन लोगों के साथ डायलॉग्स होने चाहिए। हमारे दौर में भी धरने हुए थे, लोगों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी, वो कह रहे थे कि हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा दिया जाए और प्रेसिडेंट हाउस में बिठा दिया जाए, लेकिन उनके साथ भी हमने डायलॉग्स किए, उनके साथ डायलॉग्स करके हमने उनको मनवाया। लिहाजा हम कहते हैं कि डायलॉग्स होने चाहिए और उन जो धरना हो रहा है चमन में, उसका जो है एक पॉजिटिव हल निकलना चाहिए। हमसे पहले भी यहाँ पर एक जमात आई थी, उन्होंने डेरे डाले थे, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से भी मुलाकात की थी। हमें भी वो दिन याद थे जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान ने वोट किया था, तो मरियम नवाज साहिबा ने, मियाँ साहब ने और छोटे मियाँ साहब ने और उनकी टीम ने जो हमें ताने दिए थे, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो नहीं देखा, शायद मीडिया के दोस्तों ने देखा होगा कि यहाँ पर शायद उन्हें सरीने में उनसे पहले माफ़ी मांगी होगी, या फिर जो हमें कहा था तो फिर उनके साथ भी वही हुआ। लेकिन अच्छी बात है, हम तो अब आज भी कहते हैं कि हम हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एहतराम करते हैं। हमारे साथ माजी में इत्तेहादी जमात थे, कल क्या पता इलेक्शन के बाद हमारे साथ दोबारा माजी के इत्तेहाद हो, लेकिन अच्छी बात है कि बलूचिस्तान के दोस्तों ने, सियासी बाप ने किसी बड़ी सियासी जमात पर कम से कम हाथ तो रख दिया। जो माजी में हमें ताने दे रहे थे, आज वो बताएं कि आज वो हलाल है आपके लिए और हमारे लिए हराम था। तो ये चीज़ें हम कहते हैं कि वो जो बयानिया था, लंदन का जो बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, वो होना चाहिए। इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब वो कहते हैं कि हम तो, अगर वो बात करेंगे कि हमारी बात हो चुकी है, हमारा मैच फिक्स है, तो सवाल तो फिर उठेंगे। फिर वो कहते हैं हम 120 सीटें जीतेंगे, तो सवाल हमारा ये था, जब हमारी हुकूमत थी और मियाँ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, हमज़ा शहबाज साहब वज़ीर आला थे, ज़िमनी इलेक्शन थे, हमने कहा मिल के लड़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप 2 सीटें पंजाब की, मुल्तान की और कराची की यानी कि आपकी, बाकी हमारी तो 15 सीटें कन्फर्म हैं और 3 जो है PTI या 2 जीत रही और बाकी मुकाबला है। और जब रिज़ल्ट आया तो 1 जीते और बाकी सारे हार गए। तो जो ज़िमनी इलेक्शन 20 अपनी हुकूमत में नहीं जीत सकते, वो आज दावा कर रहे हैं कि हम 120 सीटें जीतेंगे। ये तो 8 फरवरी का इलेक्शन बताएगा कि कौन सी पार्टी के पास क्या मैंडेट होगा। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल इत्तेहाद पे यकीन रखती है, डायलॉग्स पे यकीन रखती है, लेकिन हमारा फोकस होगा इलेक्शन के बाद। नंबर गेम जब आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, हम उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे कि जो है जिसकी भी नंबर गेम होंगे। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क की इकनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेजॉरिटी जमातें खुदा न खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए, तो जब वो हुकूमत को नहीं मानेगी, उस पार्लियामेंट को नहीं मानेगी, तो पाकिस्तान इकनॉमिकल स्टेबिलिटी से नहीं निकल सकता। लिहाजा इस मुल्क पर रहम किया जाए और मैं उम्मीद से हूँ कि जो हमारी निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, चीफ जस्टिस साहब उनको देख रहे हैं, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और 8 फरवरी को इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातें जो इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगी। कोई क्वेश्चन? आप देखें जब आपने कहा कि यहाँ पर जो सियासत की माजी में आपने कहा कि अब जो मजाक बन गया है, टेबल अचानक पार्टियों में जाते हैं, इसमें आपकी पार्टी भी शामिल रही है। इसी तरह 2018 में आपके सेनेटर यहाँ पर आए और उन्होंने इसी देरी साहब की कीमत गिराई और इसी तरह ऐसे वाक़यात में आप लोग मुलविस रहे हैं। और आपने पगड़ी की बात कही, इसी तरह एक वाक़या पेश आया नवीन कबूल के साथ कराची में, उस पर वीडियोज़ बने, आपके बिलावल भुट्टो साहब ने जो है मौजूद अंदाज उसे जो है पीछे धकेल दिया, उस पर वीडियोज़ बने, खुद उसने 10 दफ़ा जो है इसका जो है वीडियोज़ बनाए नबी कबूल साहब ने, लेकिन आप लोग की तरफ से बिलावल भुट्टो की जानिब से एक भी जो है वीडियो नहीं बनी या एक बयान जारी नहीं किया कि उन्हें जो है इस हवाले से नहीं कहा जैसा जो है दिखाया गया। तो इन तमाम जो है मामला के हवाले से आप लोग इसी तरह आपकी बातचीत भी चल रहा है। देखिए, पहली बात तो आपने जिस वीडियो का जिक्र किया, आपने और जिस शख्स का जिक्र किया, वो वीडियो इस तरीके से दिखाई गई है क्योंकि यही मसला है कि जब तक आपको पता ना हो कि इसका बैकग्राउंड क्या है, जिनका आपने नाम लिया वो भी वहाँ मौजूद थे
اور اس کے بعد آپ نے ان کی کئی میٹنگز دیکھی ہیں اور بڑی حالیہ میرا خیال ہے کہ ایک ہفتہ پہلے بھی ان کی وہاں دیکھی اور فٹ بال گراؤنڈ پہ وہ موجود تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں مسئلہ مل نہیں سکتا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے دوسری، دیکھیں ہم کسی الیکٹیبل کو گالی نہیں دیتے، نہ ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے تو بلوچستان عوامی پارٹی پر بھی جب ایک ان کے ساتھ ایک الائنس یا ان کی سپورٹ لی تھی تو ہم نے تو انہیں گالی نہیں دی تھی نا. ایک جماعت تھی، اس سے بات کی تھی. ہمیں تو بہت زیادہ باتیں سننا پڑی تھی. آپ آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں، پرانے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں. ان بہت ساری باتیں کی گئی کہ کس نے کس کے باپ سے بات کی، کسی کے باپ نے کسی کے باپ سے بات کرنے، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ وہ تہذیب سے گری ہوئی سٹیٹمنٹس تھیں. لیکن بہرحال اس وقت تنقید کے نشتر جو تھے وہ سارے پیپلز پارٹی پہ برسائے جا رہے تھے. آج جو کام ہو رہا ہے اس پر کیا اسی جماعت کی جانب سے کہیں پر آپ نے کوئی اس پرانی سٹیٹمنٹ یا سٹیٹمنٹس کی کلیریفیکیشن سنی؟ کیونکہ میں نے نہیں سنی. میں نے نہیں سنا کہ آج اس وقت کی چیز جو حرام تھی وہ آج حلال کیوں ہوئی، جس طریقے سے فیصل صاحب نے کہا. تو الیکٹیبلز اسی معاشرے میں ہے، ان کی سیاست بالکل ہے، لیکن الیکٹیبلز جو ہے ان کی بھی ایک اپنی سوچ اور سمجھ ہوتی ہے. الیکٹیبلز کو بھی آپ پریشرائز نہیں کر سکتے، آپ ان کو کہیں دھکیل نہیں سکتے. یہ ان کی انڈیپینڈنٹ چوائس ہونی چاہیے، اور جس کی بھی جو چوائس ہے، جس بھی جماعت کے ساتھ وہ جانا چاہتے ہیں، ان کو یہ حق ملنا چاہیے. ہمارے تئیں جو یا ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ پریشر کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے ہم اپنی کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں. عبداللہ بھائی، اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو جن سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، آپ پولیٹیکل جماعت پہ تو تنقید کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتا ہے ڈاٹنے کو چوائس کرنے والے پچھلی مرتبہ جنہوں نے چوائس کیا، اب کس نے چوائس کر کے پاکستان موومنٹ کے جہاں پر الیکشن سے پہلے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فلاں پارٹی کی حکومت آ رہی ہے، تو آپ ان سے ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے یا ان کا نام کیوں نہیں لیتے کہ جن سے آپ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ یہ بات کی، اور اگر آپ نے ہمارے ٹاک شوز یا پریس کانفرنسز سے دیکھی ہوں گی تو ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، کیونکہ ہم نے اگر اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو ہم ان کا نام لیں گے، اگر سویلین ادارے ہوں گے ہم ان کا نام لیں گے. ہم نے سوال کیا آپ کے پرائم منسٹر صاحب سے کہ فورن آفس کے ایک ہمارے ہائی کمشنر ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کو سی آف کرتے ہیں لنڈن سے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا یا تو ان کو کہا گیا ہے، ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ سی آف کریں گے، ان کو کہا گیا ہوگا. پھر جب یہاں پر آتے ہیں اور جو چیز پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے ہم کہتے تھے اپنے دور میں اپوزیشن میں، پی ایم ایل ایل پیپلز پارٹی، کہ اگر عدالت کے گیٹ پہ اگر دستخط ہوتے ہیں یا فنگر پرنٹس لے گئے تو غلط ہے، تو پھر وہ اسٹیٹ لاء میں بھی فنگر پرنٹس غلط تھے. کاکڑ صاحب نے کہا ہر پاکستان شہری کا یہ حق ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی فنگر پرنٹس اگر گھر میں ہوں تو اچھی بات ہے. جب پنجاب میں جو آپ پروٹوکول کہیں یا جس قسم کی اگر وہ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے وہاں کی حکومت کی طرف سے یا سویلین حکومت کی طرف سے، تو ہمارے ملک میں 5 سابق وزیر اعظم اور بھی موجود ہیں. اگر شہباز شریف صاحب، خاقان عباسی صاحب، راجہ پرویشور صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا تو ہم کہیں گے بڑی اچھی بات ہے، عزت ہے کا مقام ہے، سب کو دینا چاہیے. لیکن اگر ایک شخص کے ساتھ کیا جائے گا تو سوال تو اٹھیں گے. اس پہ الیکشن کمیشن نے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا 3 دن پہلے ایک خط لکھا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو بھی اور چیف سیکرٹری صاحب کو بھی، کہ تمام چیف سیکرٹری صاحبات کو، کہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہو رہی ہیں. اس کا آپ جو ہے اس کا آپ اس کو دیکھیں. ہمیں پتہ ہے کہ 30 تاریخ تک، کل تک الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن مصروف ہے، اور ہماری یہ جو خدشات ہیں اس کو دور کیا جائے گا. کیونکہ ہمیشہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پی ایم ایل این نے ہمیشہ اداروں کو سیاست میں دھکیلا ہے، اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں. ادارے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. 8 تاریخ کو جب آج یہاں پر تو اچھی بات ہے کہ آگے اپنے صوبے میں سوائے لاہور کے جلسے کے آپ لاہور کے جلسے کا موازنہ کریں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مٹی کے جلسے کے ساتھ. ایک سندھ کے دور دراز علاقے میں انہوں نے جلسہ کیا جہاں پہ کوئی سرکاری وسائل نہیں تھے، اور ایک فرمائشی پروگرام کا مینار پاکستان میں جلسہ تھا، وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد بلاول صاحب نے 6 کنونشن خیبر پختونخوا میں کیے اور کل ادھر بھی کر رہے ہیں. پی ایم ایل این ابھی تک عوام میں نہیں گئی، عوام میں جانے سے ڈر رہی ہے. جائیں نا عوام میں. پنجاب اگر وہ سویپ کر رہے ہیں تو عوام میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ یہ تو فی الحال دائیں بائیں سارے ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی بلوچستان سے، کبھی سندھ سے، کبھی خیبر پختونخوا سے. جیسے آپ نے کہا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. عبداللہ کو دے ادھر دائیں سائڈ سے بیگ لے لیں، واٹس ایپ اس کے بعد پھر آپ عبداللہ
इसके बाद आप हम क्या समझे योमी तासीर के गस्ते के बाद क्वेटा में होगी, क्या उनके मियां साहब की क्वेटा विजिट को काउंटर करना है? नहीं, मैं नहीं समझता कि हम मियाँ साहब के विजिट काउंटर करते हैं। हमारे लिए हम तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के एहतराम करते हैं। हमारे यौम तासीस माजी में पंजाब में भी हुआ है, सिंध में होता रहता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है, कश्मीर में भी हुआ है, इस्लामाबाद में भी हुआ है। इस दफ़ा हम जो है वो क्वेटा में मनाने रहे हैं, अगली दफ़ा शायद हम गिलगित बल्तिस्तान जाएँ या दूसरे सूबे जाएँ। हम रोटेट करते रहते हैं मुख्तलिफ उसमें। हम कोई काउंटर करने के लिए नहीं है, और हर किसी का जमहूरी हक है, हर जमात, हर सियासी जमात का, हर इलेक्टेबल का जमहूरी हक है कि वो जिस जमात के पास भी जाएँ। हम इज़्ज़त और एहतराम करते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का भी और उनके वर्करों का भी। हम वो जमात नहीं है कि हम गालम गलोच वाली जमात हों। हम गाली देंगे, हम सियासी तनकीद बिल्कुल करेंगे, उनको हम उनकी भी सियासी पॉजिटिव तनकीद को हम वेलकम करेंगे। कल क्या पता कौन सी जमात के साथ हमारे इलेक्शन के बाद इत्तेहाद भी हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन हम एहतराम के और इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए तनकीद करेंगे। सेनेट के इलेक्शन में लाने की आप बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी पे ये भी इल्जाम है कि सेनेट के इलेक्शन में आपकी पार्टी ने उसको उम्मीदवार वोट दिए जिसको पीटीआई की हिमायत हासिल थी। इसमें आप क्या कहेंगे? आप उसमें कुछ शामिल नहीं थे उस चीज में? बिल्कुल, हम तो कहते हैं, हमने माजी में पीटीआई के कैंडिडेट को, जो कि बलूचिस्तान से जिसका ताल्लुक था, हमने उनको वोट किया। बदले में हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट को पीटीआई ने वोट किया था। हमने नहीं, हम तो देखें चीज़ें होती हैं। देखें, हम जो है इत्तेहाद, आपको जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ आपके इत्तेहाद बनते हैं। पीटीआई के साथ वो हम कैंडिडेट ऑपोजिशन में बैठे थे, आपको याद होगा। वो कैंडिडेट पीटीआई के नहीं थे, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैंडिडेट थे, उस जमात से थे, वो उसके इत्तेहादी जमात से वोट थे। आपको याद होगा कि खुर्शीद शाह साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के पीछे खड़े होते थे। हम तो अपोजिशन में भी इकट्ठे रहे थे। और 2014 में आपको याद है कि ऑपोजिशन में हम मौजूद थे और पीटीआई हमारे साथ थी। और 2014 के अंदर जब धरना हुआ तो पीपल्स पार्टी ने एक मैच्योर सियासी जमात के तौर पर ऑपोजिशन का रोल अदा किया। और हम बारहा ये कहते रहे कि धरनों से मुल्क को नुकसान होगा, पीटीवी पे हमला, रेडियो पाकिस्तान पे हमला, जुडिशरी के बाहर तमाशा लगाना, इससे मुल्क की बदनामी होगी। लिहाजा हम किसी भी अपोजिशन की जमात का इस तरह की बर्बादी में साथ नहीं देंगे। हमें पार्लियामेंट और जमहूरियत को मजबूत करना है। तो हमारा मौक़िफ़ तो उस वक्त भी क्लियर था। इस साइड से ले लें। मैडम, अभी आप लोगों ने कहा कि बलूचिस्तान के साथ माजी में जो मुबैना ज़्यादतियाँ हुई है, ज़रदारी साहब ने उन पे माफ़ी या उन्होंने ये नहीं किए। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो बलूचिस्तान में पहले लोगों की बहुत बड़ी तादाद लापता किए गए थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में ही जो लाशें फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ, यानी जो मिसिंग पर्सन थे उनकी डेड बॉडीज को फेंकने का शुरू हुआ। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर उन्होंने माफ़ी मांगी थी तो ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ? देखिए, बिल्कुल उन्होंने माफ़ी एक वफाक के नुमाइंदे की हैसियत में मांगी, क्योंकि बलूचिस्तान की जो तकलीफ़ें या बलूचिस्तान के अंदर जो जुल्म हुआ, जिसमें बलूचिस्तान की मासूम आवाम का कोई हाथ नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है मासूम लोगों ने। और ये उनका हक बनता है कि वफाक अपना हाथ बढ़ाए और कोशिश करे कि उनके ज़ख़म भरे और वक्त के साथ साथ उन ज़ख़मों को ख़त्म भी करे। और जहाँ तक आपने मिसिंग पर्सनस की भी बात की है, एक बहुत अहम इशू है। और आप जानते हैं कि ज़रदारी साहब ख़ुद एक बलोच आदमी हैं, सिंध की सरज़मीन पर पैदा हुए हैं, तो उनके लिए ये कितनी अहमियत की बात होगी कि बलूचिस्तान के हुकूक और बलोच लोगों के हुकूक उन्हें मिलें। मैं तो कभी भी ये नहीं कहती कि ये छोटा सूबा है, मैं तो कहती हूँ रकबे के हवाले से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, सबसे अहम सूबा है। और आपने देखा कि जब ज़रदारी साहब का दौर था, दौर हुकूमत था, वो सदर थे, तो उस वक्त भी उन्होंने ना सिर्फ इश्यूज़ पर बात की, बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने भी बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ पर बात की, जो उमूमन लोग कहते थे कि इन इश्यूज़ पर बात नहीं होती पाकिस्तान में। और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सज़ा भी मिली है कई इश्यूज़ पर बात करने की, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। आज एक बड़ी एक अजीब सी बात है, और आप तो जानते हैं, लेकिन इस जानिब तवज्जो एक बार फिर मैं आपके सवाल की रोशनी में दिला दूं कि आज पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत अहम ओहदों पर फाइज हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं नहीं कहूँगी कि आइडियल हालात हो जाए, लेकिन कुछ
डिफरेंट हालात होने चाहिए। अगर हम अदालत उज़्मा की तरफ देखें, अगर हम प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ देखें, और या हम ऐवान पाकिस्तान का जो बड़ा ऐवान है अपर हाउस, उसकी चेयर की तरफ देखें, तो बहुत अहम ओहदों पर बलूचिस्तान के नुमाइंदे फाइज हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि वो नाकाम हो गए, लेकिन मैं तवक्का करती हूँ कि वो कोशिश करेंगे कि इन ज़ख्मों को भरा जाए और इन मसाइल को हल किया जाए। लेकिन ये यकीन ज़रूर दिलाती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी नहीं घबराई है किसी इशू पर बात करने से, आइंदा भी नहीं घबराएगी। इसमें हमें अपनी क्या कुर्बानी देनी पड़े या अपने ऊपर क्या हम पर असर होता है, इसकी हमने पहले भी परवाह नहीं की और आगे भी नहीं करेंगे। चलो ये आप कर लें, आपके पास भी आते हैं अकल। एक वो काफी देर से बैठे हुए हैं, एक वो बहुत देर लेफ्ट से ले ले, फिर कर ले आप। इमरान खान के दौर के बाद जो 1.5 साल दौर चल रहा है शहबाज शरीफ का बदतरीन दौर है अवामी मसाइल के हवाले से। बलूचिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ को इनाम तब्दीली की सूरत में वज़ीर आज़म बनाने में पीपल्स पार्टी की बराबर की शरीक है। इसका आप क्या जवाब देंगे? दूसरा, बलूचिस्तान में 20 से 22 और 25 के दरमियान एक टोला है जो इंतखाबात के वक्त यहाँ से वहाँ उड़ान करता है, उन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। मुस्लिम लीग को हम समझ लेते हैं 5 मिनट के लिए कि वो अमराना हुकूमत हुकूमत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी क्यों कर मजबूर हो जाती है इनको फिर मुस्तार देने में? देखें, आपने बात की बिल्कुल। हम 16 महीने की हुकूमत को ऑन करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे 10 मिनिस्ट्रें भी थी, हमने 10 मिनिस्टर को ऑन भी करते हैं। PMLN की हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की है उसको PMLN ऑन नहीं करती। कभी आपने नहीं सुना कि हमारी 16 महीने की हुकूमत, वो कहते हैं मियाँ साहब की पिछली हुकूमत की बात करें, 16 महीने की बात ही नहीं करते। और आज वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि हम कहते हैं कि चाहे 16 महीने की हुकूमत है, चाहे हमारा मंशूर है, हम अपने मंशूर को लेकर, अपने 16 महीने की हुकूमत को लेकर हम आवाम में जाने को तैयार हैं और फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। बाकी जमातें इलेक्शंस नहीं मांग रही बल्कि राय फरार इख्तियार करना चाहती हैं और वो ऑन भी नहीं करते चीज़ को। देखिए, जब इन्होंने बात की, जब धरना था PTI का, तो उस वक्त हम अपोजिशन में थे, हमने एक रोल प्ले किया और PTI के मेंबरान को हम वापस पार्लियामेंट में लेके आए। और जब ये चीज़ हुई, अदम एतमाद की बात आई, तो आइन के लिए, इस कानून की बालादस्ती के लिए, एक जमहूरियत के लिए हमें अदम एतमाद का हिस्सा बनना था। क्योंकि अगर हम अदम एतमाद न करते, उसके बाद जो प्लान उनका था, जो कह रहे थे कि 10 साल के लिए एक लाडला इंस्टॉल हो जाएगा, आज देखें कि आपके बलूचिस्तान में जो बदअमनी आज हो रही है, या मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ पर जो बदअमनी हो रही है, जहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, पुलिस के नौजवान कुर्बानी दे रहे हैं, आप साफ़ी कुर्बानी दे रहे हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं, वो कौन लेके आए थे? आपको नहीं पता किस दौर में वो लोग यहाँ पर आए थे? वही लोग जो हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी थी, अरबों डॉलर हमने खर्च किए, और उसके बाद हम दोबारा ग्राउंड जीरो पे आ गए, और उन्हीं लोगों को आपने कहा कि ये पुरअमन होंगे। आज वो पुरअमन है? आज उस बुराई के जड़ जो है, जो लेके आए थे, आज वो तो कोई जेल में और कोई रिटायर हो चुके हैं। भुगत पाकिस्तान की आवाम रही है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भुगत रहे हैं, पुलिस के नौजवान भुगत रहे हैं। ये चीज़ें थी। अगर वो खुदा न खास होते, पता नहीं हम कहाँ से कहाँ चले जाते। लेकिन आपको जो है, आपको एक बड़ी बीमारी को ख़त्म करने के लिए छोटी बीमारी से मिलना होता है। आप बलूचिस्तान की आवाम इस दफ़ा, अगर आपके इतमाद नहीं है उन लोगों पे जो आप कह रहे हैं, इस दफ़ा हम कहते हैं कि वो ना हो कि 55,000 जो हैं वो ह्यूमन एरर वोट हों, या आप अंगूठे की ताकत से इलेक्शन, वही मैं कह रहा हूँ कि उन इलेक्टेबल्स को अंगूठे की ताकत से, वोट की ताकत से आप उनको रिजेक्ट कर लें। अगर आप नहीं चाहते उनको, आप जिनको चाहते हैं, हम कहते हैं कि जिसके लिए बलूचिस्तान की आवाम वोट करे, उसका हक बनता है कि वो बलूचिस्तान पर भी हुक्मरानी करे और इस्लामाबाद भी जाए। मैं एक बात सिर्फ ऐड कर दूं, आकी जरदारी साहब ने अभी, आपको भी याद होगा कि उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में ये बात की थी कि इसी सवाल के जवाब में जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत के बारे में था, तो उन्होंने ये कहा था कि जी उसूली, या उन्होंने एक बड़ा उसूल उन्हें बताया कि जी उस वक्त उनके पास मेजॉरिटी थी, उनके पास नंबर्स थे। तो ये नहीं है कि उनके पास ये मौका नहीं था कि वो इक़्तिदार संभाल लें, लेकिन उन्होंने एक उसूल को फॉलो किया। हमने उस वक्त अपनी सियासत नहीं, रियासत का साथ दिया, और ये क्लियर है। मेरे ख्याल यहाँ से सवाल आप कर ले भाई, सवाल भाई 1 मिनट, वो काफी देर से आप कर ले, आप इसके बाद आप कर ले भाई, आप कर ले ना, सवाल कर ले। दोनों कर। आपने प्रोजेक्ट की बात की, कुछ अर्सा पहले हम देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लोग जा रहे थे,
लेकिन अचानक से वो सारे लोग उन्होंने रास्ता तब्दील किया और वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए और फिर उसके बाद सिंध में भी एमक्यूएम के साथ एक इत्तेहाद बन गया। तो क्या पीपल्स पार्टी समझती है कि ये किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कल से इलेक्शंस को मुलतवी करने की दरखास्तें मुख्तलिफ किस्म की आनी शुरू हुई हैं, आप देख रहे हैं। अगर ऐसा कोई मूव किया जाता है तो पीपल्स पार्टी उस टाइम कहाँ स्टैंड करेगी? एक छोटी सा और चीज ऐड कर दूं, शहबाज साहब ने जो बातें आपने की कि गालम गलोच और इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए, शहबाज साहब ने यहाँ भी आके वही बातें की। फिर आप दोनों लड़ किस बात करेंगे? देखिए, हमारी तो लड़ाई है नहीं उनसे। सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं, और ये हम नहीं थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए किसी और जमात के वुज़रा का नाम लेना शुरू कर दिया। ये सिलसिला उनकी जानिब से शुरू हुआ। हमने बहुत हद तक, बहुत देर तक बर्दाश्त किया। फिर उनके सीनियर रहनुमा उंगलियां उठाते रहे और बेवजह, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी मवाद के, वो गैर ज़रूरी नामुनासिब बातें करते रहे। इस बात पर फिर पीपल्स पार्टी ने यही कहा कि जी हमारे 10-11 जितनी मिनिस्ट्रीज़ थी, अगर कारकर्दगी पर बात होनी है तो हम अपनी कारकर्दगी पर बात करने के लिए तैयार हैं। और इसमें सर फहरिस्त हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो वज़ारत ख़ारजा संभाल रहे थे, उन उमूर को संभाल रहे थे। और उसके नतीजे में आपने देखा कि फैटिफ की ग्रे लिस्ट की एक अचीवमेंट थी, उसके बाद हमारा फ्लड्स का जो एक अचीवमेंट थी, मुख्तलिफ फोरम्स पर जब पाकिस्तान कट चुका था, दोबारा वहाँ हमारी बहाली हुई, तो बहुत कुछ था। और कभी भी बिलावल साहब ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना क्रेडिट अपने लिए रखा हो। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को और बिलखुसूस उस वक्त के वज़ीर आज़म को क्रेडिट दिया। लेकिन ये बहुत ही हमें अजीब लगा कि जब उनके सीनियर लोग एक सोची समझी प्लानिंग से इस तरह की बातें पब्लिक में करने लगे, चाहे वो चीनी के हवाले से हो या किसी और इशू के हवाले से हो, जबकि हमने आपको हर बात टेक्निकली समझाई, खोल के बताया कि जी इस तरह हुआ है, कितनी चीनी स्मगल हुई है, हमारे पास तो बॉर्डर्स नहीं थे, हमारे पास तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं थे, उसकी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं थी। मौशी जो फैसले किए गए या मईशत के हवाले से किए गए वो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। हम ये बातें करना नहीं चाह रहे थे, मगर ये हमसे बातें, हमें उकसाया गया ये बातें करने पर। हम आज भी कहते हैं हम ये बातें नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि कोई आकर टेलीविज़न चैनल्स, कैमरास के आगे ये कहे कि हमारी बात हो गई है और अगला वज़ीर आज़म फ़लानी जगह से होगा, तो हम क्या समझें कि वोट को इज़्ज़त देने का नारा झूठा था, खोखला था? क्योंकि हम उस नारे से खुश हुए, हम यकीनी तौर पर खुश हुए, क्योंकि हमने हमेशा वोट को एहतराम और वोट को अहमियत देने की बात की। और आपने मेरे ख्याल एक और बात की थी, देखिए मैं आपको सिंध का भी बताऊंगी और फैसल भी आपको शमूलियत की बात करेंगे। देखिए सिंध के अंदर, क्योंकि मैं सिंध के हलके से लड़ती हूँ और वहाँ 2013-2018 की मैं आपको मिसाल दूँ, जो एक 2013 का इलेक्शन आरओ इलेक्शन था, 2018 का इलेक्शन आरटीएस इलेक्शन था, बावजूद हमारी रिजर्वेशंस के हमने नताइज को कबूल किया पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। उस वक्त भी इत्तेहाद बने थे। सिंध के अंदर 12-13 जमातों की खिचड़ी बनी थी और उस खिचड़ी का सियासी जो सारे यतीम इकट्ठे हो गए थे, उस वक्त हमने सिंध में भी मुकाबला किया था। मैं अपने हलके में 13 जमात के इत्तेहाद से लड़ चुकी हूँ, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे और उस प्लेटफॉर्म।